سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ فلق کا لفظی ترجمہ پیش کروں گا۔ قل تم کہو، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، بی کی ربی پروردگار، الفلق صبح، من سے شر شر ما جو خلق اس نے پیدا کیا، و اور من سے شر شر غاسقن اندھیری رات، اذا جب وقب وہ چھا جائے، و اور من سے شر شر نفاثاتی پھونکے مارنے والی عورتوں، فی میں عقد گرہوں، و اور من سے شر شر حاسدین حسد کرنے والے، اذا جب حسد وہ حسد کرے۔ اب آپ کے سامنے تفسیری ترجمہ سورہ فلق کا میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تم فرماؤ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب آپ کے سامنے سورہ ناس کے جو الفاظ ہیں ان کا لفظی ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ قل تم کہو، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، بی کی رب پروردگار، الناس سب انسانوں کے، ملک بادشاہ، الناس سب انسانوں کے، الہ معبود، الناس سب انسانوں کے، من سے شر شر الوسواس بار بار وسوسے ڈالنے والے، الخناس پیچھے خسکنے والے، الذی جو یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، فی میں صدور دلوں، الناس لوگوں، من سے الجنہ جنات، و اور الناس انسانوں۔ اب آپ کے سامنے تفسیری ترجمہ سورہ ناس کا پیش کر رہا ہوں۔ تم فرماؤ میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب انسانوں کے معبود کی، بار بار وسوسے ڈالنے والے، پیچھے خسکنے والے کے شر سے، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، جنات اور انسانوں سے۔ محترم مرد و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر کا آج سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو آپ اکثر و بیشتر نماز میں پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں 7 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ایک ساتھ نازل ہوئی، یعنی یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ سورہ فلق میں 1 رکوع 5 آیات 23 کلمے اور 74 حروف ہیں، اور سورہ ناس میں 1 رکوع 6 آیات 20 کلمے اور 79 حروف ہیں۔ محترم مرد و خواتین، سب سے پہلے آپ کے سامنے
इन दोनों सूरतों का शान नज़ूल पेश करना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद मज़ीद वज़ाहत आपके सामने करूँगा। जब रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने मक्का की वादी में 40 बरस की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमा दिया और ऐलान नबूवत की खबर यहूदियों को पहुँची, तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम से अदावत व हसद करने लगे। जैसे जैसे खालिक कायनात अपने हबीब की शान को वादे करता गया और फुतूहात के दरवाजे खुलते गए, ऐसे ऐसे ही इनकी अदावत के शोले मज़ीद भड़कने लगे। 7 हिजरी में जब हुदैबिया से रहमत आलम अलैहिस्सलाम व खैर व आफियत वापस तशरीफ़ लाए, तो खैबर के यहूदियों का एक वफद मदीने तैयबा के एक मशहूर यहूदी जादूगर लबीद बिन आसम के पास आया। वफ्द ने लबीद बिन आसम के सामने अपना दुखरा पेश किया कि इस अजीम शख्स ने यहाँ आकर हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। हमने सियासी तौर पर इनको नाकाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, साजिशें की, मंसूबे बनाए, मुश्रिक कबाइल को इनके खिलाफ भड़काया, लेकिन हम नाकाम रहे। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने माहिर जादूगर थे उन्होंने भी बड़े जतन किए, बड़ी जोर आजमाई की, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। हमारे इस इलाके में तुम्हारे जादू की धूम मची हुई है, हर तरफ से मायूस होकर हम तेरे पास आए हैं। अगर तू हमारी इमदाद करे तो ये मुश्किल आसान हो सकती है। चुनाचा उसने हामी भर ली। बारगाह रिसालत अलैहिस्सलाम में एक यहूदी लड़का खिदमत गुजार था, जिसने बाद में इस्लाम को कबूल कर लिया। किसी तरह वरगलाकर उससे रहमत आलम अलैहिस्सलाम की कंगी का एक टुकड़ा और मोए मुबारक हासिल कर लिए। लबीद बिन आसम और उसकी बेटियों ने, जो इस फन में अपने बाप से भी 2 कदम आगे थी, जादू किया और खजूर के खोशे के गिलाफ में रखकर एक कुएं की तह में बारी पत्थर के नीचे दबा दिया। 6 माह गुजरने के बाद मामूली असर जाहिर होने लगा, फिर तकलीफ बढ़ने लगी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस होने लगी। तो सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए, तो उसी रात प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को हकीकत हाल से आगा फरमा दिया गया। चुनाचे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि ए आयशा, मैंने अपने रब से जिस अमर के बारे में दरियाफ्त किया था उसके मुताल्लिक मुझे बता दिया गया है। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बताया गया? इरशाद हुआ, रात को ख्वाब में 2 फरिश्ते मेरे पास आए, एक मेरे सरहाने बैठ गया और दूसरा पाँव के नज़दीक। एक ने दूसरे से पूछा, जनाब इन्हें क्या तकलीफ है? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। पूछा, किसने किया? जवाब मिला, लबीद बिन आसम ने। पूछा, जिन चीज़ों पर जादू किया वो कहाँ है? जवाब मिला, फुला कुएं की तह में पत्थर के नीचे। पूछा, अब क्या करना चाहिए? बताया, उस कुएं का सारा पानी निकाल लिया जाए, फिर उस पत्थर के नीचे से उन चीज़ों को निकाला जाए। तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अली शेर खुदा, हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत ज़ुबैर को इस मकसद के लिए उस कुएं की तरफ रवाना किया। पीछे मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद भी वहाँ तशरीफ़ ले आए। जब कुएं में पत्थर को हटाया तो उसके नीचे एक थैली बरामद हुई, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के मोए मुबारक, आपकी कंगी के चंद दंदाने, 11 गठान लगा धागा और 11 सुई चुभी हुई मोम का एक पुतला मिला। तो उसी वक्त खालिक कायनात ने सूरह फलक व नास को नादिल फरमाया। इन दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं, 5 सूरह फलक में और 6 सूरह नास में। आप अलैहिस्सलाम को कहा गया, हर एक आयत पढ़ने पर एक गिरा खोले, यहाँ तक कि सब गांठ खुल गई और मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। मोहतरम मर्द व ख़वातीन, इस मकाम पर चंद सवालात के जवाबात देना चाहता हूँ। पहला सवाल यह है, वाकई जादू होता है या नहीं? उसका जवाब यह है, जादू होता है। इसके दरमियान अहले इल्म का कोई इख्तलाफ नहीं। दूसरा सवाल यह है, क्या जादू से हकीकत तब्दील होती है? नहीं, यानी रस्सी सांप बन जाए, इंसान पत्थर बन जाए? तो इस बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ है। बाद उलमा का कहना है, हकीकत नहीं बदलती,
बल्कि ये नज़रबंदी होती है, यानी हम उसको सांप समझ रहे होते हैं, वो दर हकीकत रस्सी ही होती है। लेकिन बाद उलमा की राय है कि जादू से हकीकत भी बदल जाती है, यानी इंसान पत्थर बन जाता है और रस्सी सांप। हम इन अभ्यास में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ये हकीकत है कि जादू का असर इंसान पर होता है। इसकी 3 सूरतें हैं, जादू का असर जिस्म पर, दूसरी जादू का असर दिल पर, और तीसरी जादू का असर अकल पर। पहली जो सूरत है कि जादू का असर जिस्म पर, इस सूरत में जिस्म के अंदर दर्द, कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा थकावट और काम करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी जो सूरत थी कि जादू का असर दिल पर पड़ता है, इस सूरत में आप किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो मोहब्बत दुश्मनी में बदल जाती है, और आप किसी से दुश्मनी रखते हैं तो दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाती है। और तीसरी सूरत जादू का असर अकल पर होता है, इस सूरत में दिमाग मफलूज हो जाता है, फिर इंसान उल्टी सीधी हरकतें करता है। अब ये सवाल कायम होता है, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया? जी हाँ, बिल्कुल किया गया, जो कि इन सूरतों के शान नुज़ूल से आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस पर यह सवाल कायम होता है, क्या वो जादू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर असर अंदाज हुआ? जी हाँ, बिल्कुल हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो असर सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर हुआ, जिसका नतीजा निकला कि आपके जिस्म मुबारक में दर्द और कमज़ोरी लाहिक हो गई। लेकिन जादू का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर और अक्ल मुबारक पर नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये मनसब नबूवत और रिसालत के ख़िलाफ़ है। और जिस्म पर भी असर अंदाज होने के बावजूद फ़राइद मनसब नबूवत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। यही नज़रिया उलमाए हक्का का है। इस सिलसिले को आप हजरात देख सकेंगे हमारे YouTube चैनल वसीम ज़ियाई और हमारे फेसबुक पेज मरकज़ुल उलूम पर। और मज़ीद इस्लामी मालूमात और दीनी किताबों के लिए विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.wasimziai.com। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो